भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने रियासत तेलंगाना में कब्ल अज वक्त इंतखाबात का इशारा दिया है। केटीआर ने आज जिले निजामाबाद का दौरा किया। उन्होंने बहुत से तरक्याती प्रोग्राम शुरू किए। वजीर बल्दी नाज़िम नस्क ने उंदुल में रेलवे ओवरब्रिज का इफ्तिताह किया, जबकि कला भारती का संग बुनियाद पे रखा। इफ्तिताही तकारीब से मुखातिब होते हुए उन्होंने रियासत तेलंगाना में कब्ल अज वक्त इंतखाबात का इशारा देते हुए जिले निजामाबाद से बीआरएस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने को कहा है। केटीआर का ये तबसरा अब सियासी हलकों में बहस का मौजू बना हुआ। పేదల పక్షాన మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం, పెట్టబోయే ఈ చివరి బడ్జెట్ నైనా పెద్దలకు అనుకూలంగా కాకుండా పేదలకు అనుకూలంగా పెట్టండి. పేదవారి సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేయండి, రైతుల సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేయండి, ఉచిత కరెంటు దేశమంతా ఇయ్యండి. భారత రాష్ట్ర సమితి తరపున మా ప్రభుత్వం తరపున మా పార్టీ తరపున కేంద్రాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. తెలంగాణకు విద్యా సంస్థలు ఇయ్యండి. మా నిజామాబాద్కు పసుపు బోర్డు ఇకనైనా ప్రకటించి ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోండి. అదే మాదిరిగా తెలంగాణకు జాతీయ ప్రాజెక్టు హోదా ఇయ్యండి. పక్కన కర్ణాటకకి ఇస్తారు, అటు మధ్యప్రదేశ్కి ఇస్తారు, మా పాలమూరుకి ఇయ్యరు, మా కాళేశ్వరానికి ఇయ్యరు. ఏదో ఒక ప్రాజెక్టుకు జాతీయ ప్రాజెక్టు హోదా ప్రకటించండి. ఖచ్చితంగా ఇవి చేస్తేనే మీకు రేపేమైనా మనుగడ ఉంటుంది. అంతేగాని తెల్లారులేస్తే కేసీఆర్ని తిట్టుడు, మంత్రులను తిట్టుడు, నోటికొచ్చినట్టు బూతులు మాట్లాడుడు, సంస్కారహీనంగా మాట్లాడుడు. మాట్లాడదలుచుకుంటే మీ అయ్యలు గుర్తొచ్చినట్టు మాట్లాడే సత్తా మాకు కూడా ఉంది, మీ తాతలు గుర్తొచ్చినట్టు మాట్లాడే సత్తా మాకుంది. మీకంటే బాగా వచ్చు భాష, మీకంటే బాగా మాట్లాడగలుగుతాం. అది బూతులైనా ఏదైనా కూడా బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడగలుగుతాం. కానీ ఇక్కడ ఉండే పార్లమెంట్ సభ్యుడు కూడా నేను చెప్తా ఉన్నా, సభ్యతతో మాట్లాడి. ఇకనైనా ఒక పెద్ద మనిషి కొడుకు డి శ్రీనివాస్ గారు అంటే మా అందరి గౌరవం కూడా ఉంది. పెద్ద ఆయన కొడుకు అని ఊకుంటున్నాం. కానీ ఇంత సంస్కారహీనంగా ఒక అసభ్యకరమైన భాషలో నోరు తెరిస్తేనే బూతులు, చండాలమైన మాటలు, అంతకంటే ఎక్కువ మాట్లాడే శక్తి మాకుంది. కానీ నీలాగా సంస్కారహీనులం కాదు. దమ్ముంటే చేతనైతే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దానిలో 10% అన్న కేంద్రంలో పలుకుబడి ఉంటే సాధించకరా నువ్వు మీ అధ్యక్షుడు. ఇక్కడ డైలాగులు కొట్టుడు కాదు. మాకంటే 2 మంచి పనులు ఎక్కువ చేసి ఇలా మేము ఒక ఐటీ హబ్ కట్టినాం నిజామాబాద్లో, మీరు 2 కట్టుండి మేము వద్దంటున్నామా? మేము ఒక ప్రాజెక్ట్ కడితే మీరు 2 కట్టుంది. మేము కళాభారతి కడుతున్నాం, మీరు ఒక 1000 కోట్లు ప్రత్యేకంగా తీసుకురా నిజామాబాద్కి వద్దన్నామా? మేమన్నా ఆపినామా? నిజామాబాద్ రూరల్లో పెట్టు, ఆర్మూర్లో పెట్టు, టౌన్లో పెట్టు, బ్రహ్మాండంగా 1000 కోట్ల రూపాయలు తీసుకొచ్చి మొత్తం రోడ్లు, మొత్తం మిగతా అన్ని కార్యక్రమాలు నువ్వే చేయి, మేము వద్దంటలేం కదా. ఈ రకంగా చిల్లర మాటలు మాత్రం మాట్లాడవద్దని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తూ, మరి ఇప్పటికైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఫిబ్రవరి 1 నాడు भारतीय जनता युवा मोर्चा के कायदीन ने एसआई और कांस्टेबल उम्मीदवारों की हिमायत करते हुए डीजीपी ऑफिस का घेराव किया। बीजेवाईएम कायदीन ने हाईकोर्ट के अहकाम के मुताबिक एसआई और कांस्टेबल उम्मीदवारों के साथ ही एकसा सलूक करने का मुतालबा करते हुए आज एहतजाज दर्ज करवाया और डीजीपी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और लीडरान के दरमियान हाथापाई हुई, जिसके सबब वहाँ कशीदगी फैल गयी। इस वाक़े में बीजेवाईएम के रियासती सदर भानु प्रकाश को चोटें आई हैं। पुलिस ने मुजाहिरीन के हुकूमत मुखालिफ नारे बुलंद करते हुए एहतजाज जारी रखने पर उन्हें गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। तेलंगाना के वजीर बरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने हिंदुस्तान के तनव्वु का एहतराम करने की जरूरत पर जोर दिया है। काकतिया सैंडबॉक्स प्रोग्राम के दौरान उन्होंने कहा कि जमहूरियत ही हिंदुस्तान का असासा है और हमारे इदारे हो या फिर लोग, इनकी तौहीन हिंदुस्तान को तरक्की की सिमत नहीं ले जाएगी। केटीआर ने याद दहानी करवाई कि 1980 की दहाई में चीन और हिंदुस्तान की जीडीपी तकरीबन एक जैसी थी, लेकिन अब चीन की मैशियत $16 ट्रिलियन है और हिंदुस्तान की मैशियत अब भी $3 ट्रिलियन ही है, क्योंकि चीन ने उस वक्त अपनी तवज्जो तरक्की पर मरकूज की थी, जबकि हिंदुस्तान की तवज्जो सियासत पर मरकूज थी और इसीलिए हिंदुस्तान तरक्की में पीछे है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डाउस के दौरे के तजुर्बात भी IT मिनिस्टर ने शेयर किए और कहा कि अब दुनिया भर के ममालिक ने चीन पर अपने इन्हिसार को कम करना शुरू किया है और ये हिंदुस्तान के लिए फायदा उठाने और आगे बढ़ने का बेहतरीन मौका है। हिंदुस्तान को मैन्युफैक्चरिंग, खिदमत और दीगर शोबों में मजीद तब्दीलियां लाने की जरूरत है। वजीर IT ने पब्लिक सेक्टर में कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए निज़ाम मुतारिफ करवाने की जरूरत पर जोर दिया है। अवाम बिलखुसूस नौजवानों को बड़े पैमाने पर सोचने, तख्लीकी सलाहियतों को उभारने और मुलाजिमत के मुतलाशी बनने के बजाय मुलाजिमत फराहम करने वाले बनने की जुस्तजू करने और वालिदैन को भी अपने बच्चों के साथ ताउन करने का उन्होंने मशवरा दिया है। Give you a fake answer. We have not done enough so far. There's still a lot of room. But I'll only urge one thing of women leaders and women representatives. See, today in Telangana, we have 50% of women representatives in both Gram Panchayatis
municipalities and Zilla Parishads. We have 32 Zilla Parishads, 142 municipalities and urban local bodies, 12,769 Gram Panchayatis. We have 50% women leaders there. But in the legislature and the parliament, in legislature we have 119 MLA seats, 120 rather, out of which we only have 6 women legislators. And in parliament again, out of 543, I'm not sure how many women parliamentarians are there. The only way we can change this is, of course, continuing to push and maybe bringing in legislation. The 33% reservation bill that was talked about, because affirmative action, no matter wherever in the world, be it in the US or be it in a developing country like India, the one way things can happen is by way of legislation. My party, led by our Honorable CM, has always wanted the 33% reservation bill to be tabled. So hopefully, the day is not far, hopefully, like I said, because unfortunately, we don't run a government of India now. So whatever was within our purview, we brought 50% reservation there. But I hope and pray that government of India also will wake up and bring in this legislation. In the meantime, I promise you that next election, we'll start looking at more representation of women. But these women leaders also will have to come from within the ranks. You cannot be staying away from politics for 4.5 years and coming to us in the last 6 months and saying, listen, I need a seat because I have done some good work elsewhere, not in your political party maybe, but elsewhere. So I think a lot of pressure also has to come from within the ranks, and that sort of pushing the envelope has to come from within and not from outside. That's what I would think. Thank you, KTR. Thank you, Sandhya. कौमी बीसी वेलफेयर एसोसिएशन ने रियासती हुकूमत से स्कॉलरशिप्स की फौरी इजराई को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। रुकन राज्यसभा आर कृष्णैया की सदारत में मासाब टैंक बीसी कमिश्नरेट के दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया गया। बीसी यूनियनों के लीडर और बीसी तबकात से ताल्लुक रखने वाली खवातीन व तालिबात ने बड़े पैमाने पर इस एहतजाज में हिस्सा लिया है। आर कृष्णैया ने असम्बली में 20 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल बीसी बिल पेश करने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि माधापुर के हाईटेक सिटी में फ्लाई ओवर की तामीर का मतलब तरक्की नहीं होता। राज्यसभा एमपी ने स्कॉलरशिप की रकम 5,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर देने की मांग की है और पेंडिंग मौजूदा स्कॉलरशिप को फौरी तौर पर जारी न करने पर प्रगति भवन का मुहासरा करने का इंतबाह दिया। बीसीల బడ్జెట్ 20,000 కోట్లకు పెంచాలని ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బీసీ వ్యతిరేక వైఖరి అవలంబిస్తుంది, వ్యతిరేక వైఖరిని మార్చుకోవాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ ఈరోజు వేలాది మందితో తెలుగు సంక్షేమ భవనం ముట్టడించడం జరిగింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బీసీ వ్యతిరేక వైఖరిని మార్చుకోకపోతే వచ్చే ఎన్నికల్లో తగిన గుణపాఠం నేర్పుతామని కూడా హెచ్చరిస్తున్నాం. గత 5 సంవత్సరాల కాలంలో బీసీ కార్పొరేషన్, ఎంబీసీ కార్పొరేషన్, 12 బీసీ కుల ఫెడరేషన్ల ద్వారా ఒక్కరికి కూడా రుణాలు ఇవ్వరా? ఏంటి ఇది? ఇంత దరిద్రమా? రుణాలు బడ్జెట్ కేటాయిస్తారు, రుణాలు ఇవ్వరు. ఇదేం అన్యాయం? బీసీలకు ఒక్కరికి కూడా బడ్జెట్ ఇవ్వరా? ఇంత దుర్మార్గమా? రాష్ట్రంలో 300 బీసీ గురుకులాలు ఉన్నాయి, 295 బీసీ కాలేజ్ హాస్టళ్ళు ఉన్నాయి. ఒక్కదానికి సొంత భవనాలు కట్టారు. కాలేజ్ విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్లు 5,500 ఇస్తున్నారు. దీన్ని 20,000కి పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. హాస్టల్ మెచ్చార్జీలు 5 ఏళ్ల కింద ఫిక్స్ చేశారు, దాన్ని కూడా డబల్ రెట్టింపు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर देविंदर सिंह चौहान ने मलकाजगिरी डीसीपी का ओहदा संभालने वाली आईपीएस जानकी धरावत से मुलाकात की है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 2 रोज पहले ही 91 ओहदेदारान के तबादले किए गए हैं, जिनमें 2013 बैच की आईपीएस ओहदेदार जानकी धरावत भी शामिल हैं। हुकूमत ने रचाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के मलकाजगिरी डीसीपी की जिम्मेदारी जानकी धरावत को सौंपी है। हफ्ते के रोज उन्होंने मलकाजगिरी डीसीपी की जिम्मेदारी संभाली। रचाकोंडा सीपी DS चौहान ने जानकी धरावत से मुलाकात करते हुए उन्हें ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। शहर हैदराबाद के इलाके हिमायत नगर में सड़क धंस जाने का वाकया पेश आया है, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक ये वाकया हिमायत नगर में हफ्ते को रोज पेश आया। सड़क पर गड्ढा पड़ जाने के सबब एक ट्रक 10 फीट गहराई तक फंस गया, जिसके नतीजे में 2 अफराद को चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है।
सीबीआई ने वाईएसआर कांग्रेस के रुकने पार्लिमान अविनाश रेड्डी से वाईएस विवेकानंद रेड्डी कत्ल केस में 3 घंटों तक तफ्तीश की है। वजीर आला आंध्र प्रदेश वाईएस जगन मोहन रेड्डी के चचा विवेकानंद रेड्डी के कत्ल की तहकीकात को सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना मुंतकिल किया है। मकतूल विवेकानंद रेड्डी के ड्राइवर की जानिब से सीबीआई को दिए गए बयान में अविनाश रेड्डी और उनके वालिद वाईएस भास्कर रेड्डी का जिक्र किया गया था। सीबीआई ने अविनाश रेड्डी को समन जारी करते हुए हफ्ते के रोज पूछताछ के लिए तलब किया था। हैदराबाद के कोठी इलाके में वाक़ सीबीआई के दफ्तर में रुकने पार्लिमान से सीबीआई ने एसपी राम सिंह की रहनुमाई में मकतूल एमपी के ड्राइवर के बयान की बुनियाद पर पूछताछ की है और उनके कॉल और बैंक लेन देन से मुताल्लिक भी तफ्तीश की है। पुराने शहर से गुज़िश्ता रोज लापता हो जाने वाली लड़की ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए अपने वालिदैन पर जबरदस्ती शादी करने का इल्जाम लगाया है। चंद्रायणगुट्टा पुलिस हदूद के बंडलागुड़ा इलाके की रहने वाली आलिया गुज़िश्ता रोज अपने ससुराल से लापता हुई थी। ससुराल वालों ने पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए लड़की के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद आज उस गुमशुदा लड़की का एक वीडियो पैगाम जारी हुआ। वीडियो में लड़की ने अपने वालिदैन पर उसकी जबरदस्ती शादी करने का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि उसकी पसंद से शादी न किए जाने पर उसने घर छोड़ दिया है। लड़की ने मजीद कहा है कि उसकी जान को अपने घर वालों से और ससुराल वालों से खतरा है। उसने पुलिस प्रोटेक्शन भी मांगा है। इस 5G दौर में हम बेहद तरक्की कर चुके हैं। तालीम याफ्ता और तरक्की याफ्ता तो हो गए हैं, लेकिन अफसोस के इस्लाम से दूर हो चुके हैं। नौजवान लड़के हो या लड़कियां इस्लामी तालीमात को भुला रहे हैं या फिर उनमें इस्लामी तालीमात का फुकदान है। अपनी पैदाइश के बाद से माँ बाप की जानिब से उन्हें सालों से दी जा रही मोहब्बत, शफकत, उनके लिए उठाए गए दुख, दर्द व तकलीफ सब कुछ भुलाकर कुछ दिनों या फिर कुछ महीनों से एक नामहरम से मिल रही मोहब्बत को अपने वालिदैन के सालों की मोहब्बत और शफकत पर तरजीह देकर माशरे में अपने ही वालिदैन के लिए तजलील का बाज बन रहे हैं। उलमा इकराम हो, वालिदैन हो या फिर असातिज़ा हो, उन पर यह लाजिम है कि वो अपने बच्चों बशमुल तुलबा व तालिबात, लड़के हो या लड़कियां, हलाल और हराम के दरमियान, जायज़ और नाजायज़ के दरमियान का फ़र्क उन्हें बताएं और इस तरह के वाक़यात के लिए जंगी खुदूद पर इक़दामात करें। उनमें इस्लामी तालीमात से वाकिफ़ करवाएं। बुराइयों और जराइम से रोकने के लिए बड़े पैमाने पर भी इक़दामात करें ताकि इस तरह के वाक़यात को पेश आने से रोका जा सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं आलिया हूँ, अयूब भाई की बेटी हूँ। आज को 7 मंथ्स पहले मेरी मैरिज कराए थे एक बंदे के नाम। वो बंदे का नाम समीर है, जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैरिज नहीं होने से पहले मैं एक लड़के से मोहब्बत करती थी, उसका नाम नौशाद है। मैं मेरे पेरेंट्स को बोली कि मेरे को शादी नहीं करना है, नौशाद के साथ कराओ बोले तो वो लोग माने नहीं। इमोशनल ब्लैकमेल करा के मेरी शादी वो बंदे से करा दिए और वो बंदा मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो एक नंबर का जाहिल है। डाइवोर्स तक वेट करी मैं, डाइवोर्स नहीं हो रहा तो मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं नौशाद के साथ आ गई। किसी की भी ज़बरदस्ती नहीं थी, मैं मेरी खुशी से आई और ये मैटर में नौशाद की फ़ैमिली का इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं है। मेरे को नौशाद को और नौशाद की फ़ैमिली को प्रोटेक्शन होना है, बस ये रिक्वेस्ट है। प्रोटेक्शन इसलिए होना है कि मेरे को और नौशाद के फ़ैमिली को हमारे फादर से और जिस बंदे से मेरी शादी हुई उससे जान का धोखा है। सीसीएस पुलिस ने बैंक गारंटी के जाली दस्तावेजात बनाते हुए धोखाधड़ी करने वाले बैन रियासती गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार किया है जो कि कोलकाता से सरगर्म थे। सीसीएस जॉइंट सीपी ने मीडिया को बताया कि इस गैंग ने इंडस एंड बैंक के नाम पर करोड़ों रुपयों की गारंटी दस्तावेजात तैयार किए और 47 लाख रुपए कमीशन हासिल किया था। जांच के दौरान 2 करोड़ 25 लाख पर मुश्तमिल बैंक गारंटी दस्तावेजात फराहम किए जाने का पता चला, जो कि तस्दीक के बाद जाली पाए गए। डीसीपी ने बताया कि मुलजिमीन ने अब तक तेलंगाना के साथ साथ दीगर रियासतों में भी 60 फर्जी दस्तावेजात फराहम किए हैं, जिनकी मालियत तकरीबन 35 करोड़ रुपए होने का इम्कान है। टोली के कब्जे से जाली बैंक गारंटी दस्तावेजात, 5 मोबाइल फोन और 2 चेक्स बरामद कर लिए गए हैं। रैकेट बस्ट किया है जिसमें A1 जो वारंगल से है उसने फेक बैंक गारंटीज A2 से लिए, जो कि राजस्थान से है, जो एक ब्रोकर की तरह काम करता है, और जो कि A3 और A4 जो कि इसके मास्टरमाइंड है पूरे गेम के, जो कि कोलकाता से है। और उधर ये फेक बैंक गारंटी इंडसइंड बैंक का एक इनको फॉर्मेट एक बार मिल गया। दीज आर ऑल दोज बैंक गारंटी, नॉट जस्ट इन ये पूरे भारत में जिसको उन्होंने बैंक गारंटीज दी है वो हैं, जो 60 हैं टोटल। और हमारे केस में इन्होंने 11 बैंक गारंटीज दिए हैं
और ये 11 बैंक गारंटीज हर्षिता इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड में प्रज्वल और संदीप रेड्डी जो इनके डायरेक्टर्स हैं उनको दिए थे, ये बोल के कि ये ओरिजिनल है। और ये 11 बैंक गारंटीज की उन्होंने 1 करोड़ की सिक्योरिटी भी ली थी और 47 लाख का कमीशन भी लिया था। और इसमें ये एक चीज़ और क्या करते थे, जब ये बैंक गारंटीज सपोज डिपार्टमेंट ऑफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन या करीमनगर स्मार्ट सिटी को सबमिट हो जाते थे तो वेरीफाई करने के लिए वो एक ईमेल भेजते कि वेदर ये सही है कि नहीं है। और ये ईमेल भी जो बैंक गारंटी में छपे होते थे, ईमेल एड्रेस भी गलत थे। जो ये A3 A4 जो शुभ्रजीत है इसने खुद ही क्रिएट किए थे और वो खुद ही रिप्लाई कर देता था कि ये बैंक गारंटीज एक्चुअली ओरिजिनल है। तो वेरीफाई करने का कोई स्कोप नहीं था इसमें। डिपार्टमेंट को भी लगता था कि ये सही बैंक गारंटीज आई है। तो इसमें जो हमारा केस हुआ, फिजिकली मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन ने फिजिकली ये पोस्ट करके इंडसइंड बैंक कोलकाता ब्रांच को भेजे, जहाँ कोई ब्रांच ही नहीं थी, पर गलती से एक रीजनल ऑफिस में चले गए और रीजनल ऑफिस से रिप्लाई आया कि हमारी ऐसी कोई ब्रांच ही नहीं है। तो जब ये पता चल कोई ब्रांच ही नहीं है, ये पूरी डुप्लीकेसी है, तो FIR हमारे पहले साइबर क्राइम से द्वारा EOW में री रजिस्टर हुई। और जब हमारी टीम्स राजस्थान गए, उधर से नरेश शर्मा को पकड़ के लाए, उन्होंने बोला कि ये तो मैंने नीलोटमल दास और शुभ्रजीत घोषल से लिए हैं जो वहाँ पे बनाते हैं। तो ये पूरा जो रैकेट ऑल ओवर इंडिया बैंक गारंटी फेक बनाने वाला है, ये बस्ट हुआ। और उधर कोलकाता पुलिस से संपर्क में आने में भी ये पता चला कि इस तरह के क्राइम्स वहाँ पे कॉमन है। जैसे अगर आप देखें भरतपुर में सेक्स टॉर्शन या जामतारा में साइबर क्राइम्स है, इस तरह के क्राइम्स वहाँ पे प्रेवलेंट है, इसलिए वहाँ से यहाँ ये बैंक गारंटीज फेक सप्लाई किए जाते हैं। तो अभी तक हमारे केस में पकड़े गए A3 A4 ने टोटल 60 फेक बैंक गारंटीज दिए हैं अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक, जो कि 45 करोड़ के हैं और जो कि फेक इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक के उसमें फॉर्मेट्स पाए गए हैं। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में M मटैया, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस EOW टीम 9 अंडर सुपरविजन ऑफ S भुवन कुमार ACP एंड एडिशनल DCP EOW महेंद्र, और उसके अलावा साइबर क्राइम से K प्रसाद राव इंस्पेक्टर, SI शिवशंकर, हेड कांस्टेबल वासु बाबू, जनार्दन हेड कांस्टेबल, श्रीकांत कांस्टेबल ने बहुत बढ़िया काम किया। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 93 केसेस दर्ज किए गए हैं। वबा के आगाज से अब तक कुल 4,46,82,320 केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 93 केसेस दर्ज किए जाने के बाद एक्टिव केसेस की तादाद 1,842 हो गई है। यौमिया मुस्बित शरह 0.07%, हफ्तावार मुस्बित शरह 0.8% रही है। मुल्क में कोरोना वायरस से कुल 5,30,739 अमवात हो चुकी हैं। शरह अमवात 1.19% दर्ज की गई है। 24 घंटों के दौरान एक्टिव केस लोड में 54 केसेस की कमी भी आई है। वजारत ने बताया है कि 4,41,49,949 अफराद इस बीमारी से सेहतयाब हुए हैं। शरह सेहतयाबी 98.81% रही है। मुल्क भर में जारी टीका अंदाजी मुहिम के तहत 220,38,00,000 अफराद को कोरोना का टीका दिया गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।